So, good morning, everyone. Now, today we will discuss the next DPP on the dual nature of radiation and matter. Again, the same subtopic is same as the previous one, that is the experimental study of photoelectric effect. And as you know, हम लोग लास्ट ईयर के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जेई मेंस नीट एंड सीईटी प्रॉब्लम्स. नाउ, okay. So the first question here, the photocell is illuminated by a source of illuminated by a source of light which is placed at a distance d from the cell. If the distance become d by 2, then number of electron emitted per second will be, as we know बच्चों, that intensity, number of electron emitted is directly proportional to the intensity of light. This much we know from the experimental study of photoelectric effect. Okay, directly proportional to the intensity of light, incident light actually. So, and if we have a point source, then we know formula for intensity is power upon my area, or you can say power upon my 4 pi r square. Okay, so initially let it be, initially r is equal to the d. This was the condition initially. So if I'll put intensity, so intensity will be I equal to the p upon may 4 pi d square. Okay, now what if, okay, if r become d by 2, they are asking what will be the effect on the intensity, or you can say number of emitted electron. So intensity will be p upon my 4 pi d by 2 ka whole square. So it will be a, it will be I dash. Okay, so it will be a 4 p 4 pi d square, or I can write it as a 4 I, 4 times the intensity of I. So number, if intensity increases by 4 times, then number of electron also emitted per second will increase by 4 times. The answer will be the second one. Is it clear? So you always have to remember this thing, that experimental number of electron emitted, number of photoelectron emitted is directly proportional to the intensity of light. This much is only you have to remember. Okay, now let's go to the next problem. uh, okay, one more. As the intensity of incident light increases, क्या होता है, मैंने बताया अगर आप लोग को इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की आप इंक्रीज करते हो तो क्या इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, क्या इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा. देखो इंटेंसिटी, और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ओके, क्यों? बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण बनता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है ना, कि जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा उनका फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट मिलेगा. सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस. सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. रेस्ट ऑप्शन are the incorrect because kinetic energy only depend on the frequency of incident light. It does not depend on the intensity of incident light. Okay, तो याद क्या रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे उस मेटल सरफेस से. ओके, आफ्टर दैट नाउ लेट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो अगेन ये सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में देखा था. द सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग ऑन टिल नाउ. द photo current increases with intensity of light. B option is here. The stopping potential increases with increase of incident light. C option here. The current in the photo cell increases with increasing frequency. And D option, the photo current is proportional to the applied voltage.
So which one will be the correct answer actually? Correct answer will be, you tell, you try. So let me give you it as a homework. Okay, if I'll give you with the homework, please try to find out the answer. Okay, it's a simple one. The logic we are applying till now, you have to use that logic और आप लोगों को करने का है. तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया है और आप लोग इसको होमवर्क की तरह. नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये ऑप्शन ठीक है. अगेन यू नो द रीजन. ओके नाउ यहाँ पर एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है कि मान लो कैथोड है, कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज सच दैट वर्क फंक्शन चेंज फ्रॉम W1 by W2. बच्चों कैथोड फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कैथोड वो प्लेट होती है, जैसे कि मान लो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये प्लेट है, दूसरी प्लेट है. कैथोड वो प्लेट होती है बच्चों जिसको आप लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हो, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो एनोड होती है कैथोड, ये एनोड. ओके, आप लोग से क्या बोला है बच्चों, पहले जो कैथोड था उसका वर्क फंक्शन इनिशियली, जो वर्क फंक्शन था, ठीक है, वर्क फंक्शन इनिशियली W1 के बराबर है एंड देन लेटर ऑन फाइनली वर्क फंक्शन किसके बराबर है, फाइनली वर्क फंक्शन बराबर है W2 के. किसके बराबर है, W2 के. नाउ if the current before and after change are I1 and I2, all other condition remains unchanged, then. तो बच्चों एक बात बताओ, what I am saying, आप लोग से बोला है करंट पे क्या इफेक्ट होगा. करंट पे किस पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे. करंट किस पे डिपेंड करता है एक्चुअली, करंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर. तो बच्चों वर्क फंक्शन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है. सो करंट विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर. अगर आप लोग वर्क फंक्शन को चेंज करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट विल बी सेम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. If photoelectric emission process from a metal of work function 1.8 electron volt, the kinetic energy of the most energetic electron is 0.5 electron volt. And the corresponding stopping potential is. पहले मैं आप लोग को बच्चों थोड़ा सा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में रिवाइंड करवा देता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मान लो ये मेरा डिस्चार्ज जिसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है, ऐसे कनेक्टेड है. ओके, तो ये कैथोड, इस पे लाइट गिरती है, विंडो से लाइट आती है और मैं इस पे लाइट गिराता है, लाइट के पार्टिकल फोटॉन्स गिरते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करते हैं एनोड की तरफ. क्यों, क्योंकि एनोड का प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो एनोड की तरफ मूव करता है और हमारे को करंट मिलता है. यहाँ पे लेट इट बी एमीटर है, ठीक है. बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, आप लोग कितना रिवर्स पोटेंशियल लगाओगे. रिवर्स पोटेंशियल मतलब मान लो ये आप लोग ने ये बैटरी ना आप लोग की, आप लोग कितना रिवर्स पोटेंशियल लगाओगे सो दैट, इन्हें रिवर्स पोटेंशियल लगाना चालू करना तो उल्टा में, सो दैट मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्टॉप. मतलब कि जो अगर आप लोग रिवर्स पोटेंशियल लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगा एंड नेगेटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम चार्ज. So it will start repelling the electron with strong Coulomb force. Okay, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे रुकने लगेगा. Okay, so that potential, कितना आप लोग पोटेंशियल लगाओगे, मान लो अभी थोड़ा सा रुका, मैंने इतना ज्यादा रिवर्स पोटेंशियल कर दिया कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो भी स्टॉप हो गया. वो पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्टॉपिंग वर्ड यूज है, तो इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है. नाउ मैंने आप लोग को बताया था जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है तो उसका एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, Q इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है. ठीक है. सो अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो corresponding stopping potential भी उतना ही होगा। अगर ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके, तो चार्ज की जगह ई रख देता हूं मैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा वी नॉट आप लोगों का, ये वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा, ई कैंसिल, तो इट विल बी अ 0.5 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई कैंसिल, यू कैन, और आप लोग 0.5 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये नीट 2013 में आया है। आप लोग से बोला है एक जो सोर्स है लाइट का इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोटोसेल। फोटोसेल जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे काम करता है, एंड हम लोग ने समझा है, क्या समझा है बच्चों, कि इंटेंसिटी जो लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, मैं आप लोग को समझाता है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो सब बाद में देखते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी बी नॉट। जब किसी सोर्स को, मान लो ये फोटो सेल है हमारा, फोटो सेल मतलब जिससे इस पे लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, करंट मिलता है, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे वर्क करता है। मान लो ये फोटो सेल है हमारा और इसके सामने एक लाइट रखी गई है, लैंप रखा है हम लोगों ने, ओके। उन्होंने कहा है पहले लैंप का जो डिस्टेंस था वो 50 सेंटीमीटर है, ओके। जो लाइट है ना लैंप की, वो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होता है, और जब इतना पे होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको वी नॉट मिलता है। कितना मिलता है? वी नॉट। उन्होंने बोला बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड फोटो सेल को उन लोगों ने 25 सेंटीमीटर कर दिया। अब उन्होंने डिस्टेंस को डिक्रीज करा, डिस्टेंस डिक्रीज। बच्चों अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी विल इंक्रीज, इंटेंसिटी विल इंक्रीज, बच्चों इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग ने देखा था रिलेशन, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इनटू चार्ज टाइम मल्टीपल होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लाइक स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे, ना कि इंटेंसिटी पे। बच्चों इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर आप लोग डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी में चेंज आएगा, लेकिन आप लोगों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी, डिस्टेंस, इन सब पे डिपेंड ही नहीं करता है। वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, या ये बोल सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। तो न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, दैट विल बी इक्वल टू द वी नॉट ओनली, ओके। So it's like end of the slide here, and in the next DPP I'll start a new next subtopic of this chapter. And if you like the video, press thumb button and share with your friend. See ya, tata, bye bye.